Good morning, my dear students. This is Meenu Kapoor. Today I'll tell you how to score full marks in computer science. Your board exams are approaching. You all must be worried about how to score highest marks or full marks in each subject. So today we'll discuss about computer science. Let's start. The first thing you must be knowing is your curriculum. Read the curriculum very carefully given on the board side. You should be knowing about the exact marks distribution of each unit. As you know that there are three main units in your computer science paper. One is computational thinking and programming, that is Python. This unit contains Python, computer networks and database management, which contains MySQL or SQL. Marks distribution is like 40 marks are for Python programming only. So you must concentrate on programming part. 10 marks are for computer networks. It is totally theory topics and it's very simple. Total theory topics, very small questions and one long question of building. I'll tell you that this question is very important. We will discuss it. Then is 20 marks database management, that is MySQL. Hardly 10 to 15 commands you have to remember the syntaxes of the commands and very easy to score these 20 marks. So according to me, ये जो 30 marks है, very easy to score these 30 marks as there is no programming in these 30 marks. जो असली जंग है आपकी, जो असली स्ट्रगल है, वो इन 40 marks में start होता है, that is programming. We will discuss about it. After that, you should know your question paper. वो एक सॉन्ग है ना, हमसे तुम दोस्ती कर लो. क्वेश्चन पेपर से आपको क्या करनी है? फ्रेंडशिप करनी है. उसकी जो की है, मेन की है, वो है PYQs and sample paper. You should go through at least 4 to 5 sample papers before going for the actual board exams. If you are going through the sample papers, you will feel like कि you are familiar with the question paper. होता है ना, जैसे जब हम अपनी किसी फ्रेंड से मिलते हैं तो it's very comfortable to talk with that friend. इसके विपरीत जब हम किसी स्ट्रेंजर से मिलते हैं तो we feel hesitated, right? तो क्वेश्चन पेपर जब हमारे सामने आना चाहिए तो we should feel like कि अरे ये तो अपना सही है, ये तो बहुत फ्रेंड है हमारा. ये 3 घंटे कैसे बीत जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा. तो क्वेश्चन पेपर से दोस्ती करना बहुत जरूरी है. तो क्वेश्चन पेपर जब आप देखेंगे तो द पेपर इज डिवाइडेड इनटू 5 सेक्शंस, A, B, C and D and E. A section, as you know, that it contains 18 questions. I'm telling you very clearly that in other subjects these questions or section A contains MCQ type questions, but in computer science all questions are not MCQ question, they are 1 mark question. Here you can find MCQs, fill-ups, 1 mark direct questions, sorting type questions, not all MCQ questions, right? After that you have B section, 7 questions, 2 marks each. C section 26 to 30, 3 marks each. Then D section, comparatively long questions, 4 marks each. E section contains 2 questions of 5 marks each, right? And you have to answer all the programming questions using Python only. And apart from programming, there will be questions from networking and SQL, as I already told you. Now, what to do with programming part? Programming. कितने मार्क्स की बताई थी मैंने प्रोग्रामिंग आपको? Python 40 marks. अब इन 40 मार्क्स के लिए हमें क्या तैयारी करनी है? This I will tell you. 40 मार्क्स के लिए
This is very important. You have to revise all the topics of class 11th. As you have already done variable naming. In class 11, lists, tuples, dictionaries, strings and मॉड्यूल. इनमें से कोई भी टॉपिक हम नहीं कह सकते कि कम है. वेरिएबल नेमिंग में आप सारा फंडामेंटल भी डिस्कस करेंगे, रिवाइज करेंगे. एक क्वेश्चन आपका कंफर्म है वेरिएबल नेमिंग से आना ही आना है. एंड आई विल टेल यू द मोस्ट कॉमन मिस्टेक डन बाय द स्टूडेंट्स इन दिस क्वेश्चन. Variable naming is about some variable names will be given and you have to identify valid or invalid identifiers. The most common mistake done by students is sometimes some keywords are given in this question, right? You know the keywords, the reserved words for Python like break, else, if. Now I will tell you what are the common mistakes. Suppose if is a keyword, for loop is a keyword. टीचर ने सिखाया होता है कि keywords cannot be used as variable names. बच्चे के माइंड में होता है for तो keyword है, it cannot be used as variable name. But the common mistake is if for is given in first letter to be capital or complete capital, then it can be used as identifier or variable name. Means small for लिखा हुआ जो है वो कीवर्ड है, लेकिन अगर इसका एक भी लेटर हमने कैपिटल कर दिया या कंप्लीट कैपिटल कर दिया, देन इट विल नॉट बी कंसीडर्ड एज कीवर्ड. तो इस केस में अगर ये कीवर्ड नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, इसको वेरिएबल नेम की जगह यूज कर सकते हैं. तो दिस इज द मोस्ट कॉमन मिस्टेक. अब होता क्या है, मान लेते हैं 4 ऑप्शंस आर गिवन एंड 2 आर इनवैलिड. आपने 2 की जगह कितने चूज कर लिए, 1. एज पर द मार्किंग स्कीम हाफ मार्क नहीं मिलेगा. यू विल नॉट गेट एनी मार्क फॉर दिस क्वेश्चन. तो अगेन मार्क्स विल बी 0. इसके विपरीत अगर आपने 2 की जगह 3 चूज कर दिए ड्यू टू दिस मिस्टेक, अगेन यू विल गेट 0. मीन्स एक भी एक्स्ट्रा नहीं चूज करना है, एक भी कम चूज नहीं करना. इफ 2 आर इनवैलिड देन यू हैव टू चूज 2 ओनली. तो फॉर दैट ऑल वेरिएबल नेमिंग रूल्स मस्ट बी वेरी क्लियर टू यू. क्लियर है बच्चों? फंडामेंटल्स में से और जो बहुत ही बेसिक्स आएगा वो एक आपका आएगा ऑपरेटर्स. जितने भी ऑपरेटर्स आपके हैं, रिलेशनल ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, इक्वल्स टू, डबल इक्वल्स टू का डिफरेंस, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल्स टू, एंड और नॉट, ऑल ऑपरेटर्स मस्ट बी क्लियर. एमसीक्यू में 1 मार्क क्वेश्चन में यू विल फाइंड सच टाइप ऑफ क्वेश्चन. देन लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, स्ट्रिंग. कुछ भी छोड़ने का स्कोप नहीं है, इसमें से हमें कहीं ना कहीं क्वेश्चन मिलेंगे. और लिस्ट तो एक ऐसा टॉपिक है जो क्लास 12th में भी कंप्लीट चैप्टर है आपका इन डेटा स्ट्रक्चर. तो लिस्ट तो आपने डिटेल में करना ही करना है, एज यू विल फाइंड अ चैप्टर इन क्लास 12th करिकुलम ऑल्सो. बट डिक्शनरी, टपल एंड स्ट्रिंग आपको क्लास 11th का रिवाइज करना है, एज देयर मस्ट बी 1 मार्क क्वेश्चन एज वेल एज आउटपुट क्वेश्चन. Here I will mention one very important thing, that you have to learn all the built-in functions of list, string and tuple. जितने भी बिल्ट इन फंक्शन है जो लिस्ट पे काम करते हैं, डिक्शनरी पे काम करते हैं, बी इट लेंथ, बी इट इंडेक्स, बी इट max, min, every function should be very clear to you. तो फंडामेंटल में से क्लास 11th टॉपिक में से ये आपको करना है. मॉड्यूल्स का चैप्टर आप जरूर करिए. इंपोर्ट स्टेटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगेन इट इज रिपीटेड इन क्लास 12th ऑल्सो. आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट क्लास
12, उसमें से हमें क्या क्या करना है? Again, we are doing about programming part. 40 marks. 40 marks में से हमने revision tool कर लिया. लगभग 10 to 12 marks are already covered with this revision part. Now, in class 12 topics, you will be doing user defined function. इसमें से बेटा आपको आउटपुट क्वेश्चंस मिल जाएंगे. एंड यूजर डिफाइंड फंक्शन एक ऐसा टॉपिक है जिसे हम अवॉइड ही नहीं कर सकते, क्योंकि आगे आप जितने भी प्रोग्राम्स बनाने वाले हैं, बीट फाइल हैंडलिंग प्रोग्राम, चाहे वो बाइनरी फाइल का हो, सीएसवी का हो, इसको हम यूजर डिफाइंड फंक्शन यानी कि डेफ स्टेटमेंट से ही बनाना प्रेफर करते हैं. प्लस इसमें से आउटपुट क्वेश्चंस भी आपको आ जाएंगे. जब भी यूजर डिफाइंड फंक्शन की हम बात करेंगे और आउटपुट की बात करेंगे, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक साथ में हमको जरूर करना होगा, दैट इज लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल्स. जब फंक्शंस की बात आती है तो स्कोप की बात आती है कि कोई भी वेरिएबल का जो स्कोप है वो लोकल है या ग्लोबल है. ये टॉपिक भी आपको अच्छे से करना है, बिकॉज ये आउटपुट क्वेश्चंस में आपको जरूर करने को आएगा. इज इट क्लियर बेटा? नाउ अबाउट द यूजर डिफाइंड फंक्शन, आई विल क्लियर वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इन क्वेश्चन पेपर, whenever there is a programming question, sometimes it is mentioned write a program, and sometimes it is mentioned write a function. Please get the difference between these two questions. Write a program means you have to write the complete program. It is your choice कि आप इसे डेफ स्टेटमेंट से बनाते हैं और उसके बाद इसका मेन फंक्शन लिखते हैं, और या आप डायरेक्टली इसको मेन फंक्शन में ही बना देते हैं. बट अगर राइट अ फंक्शन आया, देन देयर इज नो नीड टू वेस्ट योर टाइम टू राइट द मेन फंक्शन. द ओनली थिंग you have to do it, you have to make a user defined function for this. I'll give you one example. Suppose there is a program in which you have to count the even numbers in the list, right? You have to define a function for that. So what you will do is you will directly start def function and you will assume that list is passed in the function. Remember, there is no need to take the input in a list. अगर आप ले रहे हैं तो you are wasting your time. इस टाइम को हम अपने क्वेश्चन पेपर में कहीं और यूटिलाइज करेंगे. तो लिस्ट इज already there, you will assume. It will just be passed into the function. You will only give the loop for the functioning and count the odd or even numbers, whatever it is asked, and return that count. Is it clear or not? Right? तो जब भी फंक्शन बनाने को आएगा तो आप पूरा के पूरा प्रोग्राम बना के अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे. You will only define that function. Now the next programming topic is stack. Right? Stack में there is a fixed question. 101% there will be one programming question in your question paper. Now it is very simple to score, right? Why? Because I told you 100% question will be there from stack. What will be the difference? There is a single question, push, pop, display. These are the main operations in the stack. So how the question will be formed? Stack question will be defining the push, pop or display, और बहुत ज्यादा हो तो एक peak function. But difference will be stack can be formed using list. As you already know, in Python we form the stack using list. In stack question, either you need to input integer or string or nested list. It can be nested list.
can be tuple or it can be dictionary. I mean to say push, pop, display or peek. These functions will remain same. The only thing is in stack what you are pushing. There will be question to push a list, there will be question to push a simple number, there will be question to push a string, or there will be question to push a dictionary. Right? So question is confirmed. The only thing is you need to prepare the basic operations of the stack, and list, tuple, dictionary are already clear as we have done in class 11 revision 2. Right? तो ये question में score करना is very simple. नाउ हमको जो एक मेन टॉपिक और करना है, एक नया टॉपिक हमारा ऐड हुआ है, दैट इज एक्सेप्शन हैंडलिंग. व्हेनेवर यू आर डूइंग बाइनरी फाइल्स तो भी आपने एक स्टेटमेंट उसमें पढ़ी होगी, ट्राई एंड एक्सेप्ट. तो दिस स्टेटमेंट इज फॉर एक्सेप्शन हैंडलिंग. राइट? तो ये टॉपिक भी आपको जरूर करके जाना है एज इट इज एडेड. Now, next topic which is very important is data file handling. अब इस टॉपिक से बचने का हमारे पास कोई तरीका नहीं है. As you know that this chapter consists of 3 subtopics. कौन कौन से हैं 3 subtopics? One is text file, another is binary file, and the third one is CSV file. अब बच्चों 3 टॉपिक है इसमें, text, binary and CSV, and you will be shocked to know that तीनों टॉपिक्स में से एक प्रोग्रामिंग क्वेश्चन 100% आपको क्वेश्चन पेपर में मिलने वाला है. यू विल फील लाइक पेपर इज आउट. यस, आई एम टेलिंग यू दैट ऑल 3 प्रोग्राम्स विल बी देयर इन द क्वेश्चन पेपर. अब ये करना आपको है कि तीनों की तैयारी करके जानी है, क्योंकि अगर क्वेश्चन पेपर का पता हो और उसके बावजूद हम तैयारी करके नहीं जाए, समझ सकते हैं फिर गड़बड़ है कहीं ना कहीं. तो हमको टेक्स्ट फाइल में से बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस आने वाले हैं, लाइक काउंट वॉवल्स, काउंट नंबर ऑफ डिजिट्स, count capital letters, count number of lines starting with a particular letter like A, copying a text file into another file. मोस्टली मैंने सारे प्रोग्राम आपको बोल दिए हैं. अगर आप ये सारे क्वेश्चंस करके जाते हैं तो somewhere you will find the question in the question paper. Second is binary file. देखने में लगता है बहुत ही डिफिकल्ट फाइल है, बहुत ही लेंथी प्रोग्राम होते हैं, बट अगेन आई एम टेलिंग यू आपको पूरा प्रोग्राम बनाने को नहीं आने वाला है. आपके पास आएगा राइट अ फंक्शन. तो मेनली बाइनरी फाइल में मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी. आपको केवल 2 ही मेन क्वेश्चन तैयार करने हैं बाइनरी में. वन इज फंक्शन टू ऐड और इंसर्ट अ रिकॉर्ड इन बाइनरी फाइल. अनदर इज to display all the records. Right? अब क्या है इसमें, अगर हम add a record करते हैं तो add means insert a record और writing a record in the file. Second, display all the records. जब आप display all the records कर लेंगे तो other questions will be automatically done. Suppose मैंने display all का प्रोग्राम सीख लिया, right? उस पे मुझे आया write a function to display the records of only those employees whose salary is greater than 50,000. तो what you need to add? वो जो display all वाला पूरा क्वेश्चन है उसमें जस्ट एक 1 स्टेटमेंट आपको ऐड करनी है, दैट इज इफ स्टेटमेंट. जिनकी सैलरी 25 या 50 से ज्यादा है केवल उन्हीं को आपने डिस्प्ले करना है. तो जो बेसिक क्वेश्चन का सिंटेक्स है वो आपको केवल 2 फंक्शंस प्रिपेयर करने हैं, ऐड अ रिकॉर्ड एंड डिस्प्ले रिकॉर्ड. डिस्प्ले रिकॉर्ड में पर्टिकुलर रिकॉर्ड्स को फाइंड करने का आप जस्ट बाय एडिंग एनी इफ कंडीशन आप बना सकते हैं. डिस्प्ले ऑल के बाद सर्चिंग विल बी अगेन सेम. इन डिस्प्ले ऑल इफ आई ऐड 1 स्टेटमेंट ऑफ इफ to check a particular ID matching equals to another ID, then it will become a question of
सर्चिंग अ रिकॉर्ड इन अ बाइनरी फाइल। तो है ना मजेदार ट्रिक कि हम केवल 2 क्वेश्चंस तैयार करेंगे और उससे हम n नंबर ऑफ क्वेश्चंस बाइनरी फाइल के विल बी एबल टू सॉल्व। देन इज CSV फाइल। अब CSV फाइल बहुत सिंपल, बस इतना है कि हमको 2 ही फंक्शंस करने हैं, एक अगेन एडिंग का और एक डिस्प्ले का। CSV फाइल में कोई बहुत ज्यादा हमको काम नहीं करना है, ठीक है। बट चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी हम चैप्टर्स प्रिपेयर करें तो एक चीज का खास ख्याल रखें कि हम इनकी वेटेज के अकॉर्डिंग करें। ये ना हो कि कोई चैप्टर में से केवल 2 मार्क्स का क्वेश्चन आना है और हम उसको 20 दिन कर ही जाए, और इस चैप्टर में से जिसमें से बहुत सारा आना है इसके लिए हमारे पास दिन ही नहीं बचे। तो डिवाइड योर टाइम schedule according to the weightage of the chapter. Right? Now programming part is already done. 40 marks हमने ये समझ लिया है कि हमने क्या क्या तैयारी करनी है। अब आप कहोगे मैम ने आपने पढ़ाया तो है नहीं, पढ़ाने के लिए डेफिनेटली वी हैव सेपरेट वीडियोस फॉर ईच टॉपिक, राइट। अभी के लिए हमें करना है कि क्या क्या इंपॉर्टेंट हमको तैयार करना। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज, नेक्स्ट यूनिट इज नेटवर्किंग। कितने मार्क्स की बताई थी आपको स्टार्टिंग में? 10 मार्क्स। 10 मार्क्स की आपका नेटवर्किंग का टॉपिक आना है, एंड द की इज डोंट लीव एनी टॉपिक। अब बुक में अगर ये चैप्टर देखेंगे डेफिनेटली बहुत घबराहट होने वाली है, क्योंकि 100+ पेजेस का ये चैप्टर है बुक्स में, बीच सुमिता अरोड़ा और प्रीति अरोड़ा। बट इस 100 पेजेस को देख के घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो 10 मार्क्स है इसमें बहुत सिंपल है। 1 मार्क्स की डेफिनेशन हर टॉपिक की आप कम से कम साइड बॉक्स में एक डेफिनेशन दी होती है, बहुत ही मेन पॉइंट दिया होता है, केवल आप पहले सबकी डेफिनेशंस को लर्न कर लीजिए, राइट। एक आपका क्वेश्चन जो कंफर्म आना ही आना है 5 मार्क्स का, दैट इज बिल्डिंग वाला क्वेश्चन। कुछ बिल्डिंग्स दी होंगी आपको, उनके कुछ नाम होंगे ABCD। यू रिमेम्बर दिस क्वेश्चन? आई थिंक सभी को पता होगा जिन बच्चों ने तैयारी करी है कि ये बिल्डिंग का क्वेश्चन आना है, एंड आफ्टर गिविंग दिस बिल्डिंग वाला टाइप ब्लॉक्स देयर विल बी some details given like number of computers in each building, and after that 5 questions will be asked. Believe me, ये 5 क्वेश्चन हर क्वेश्चन में रिपीट होने वाले हैं। बिल्डिंग वाले 5 से 7 क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कर लीजिए सैंपल पेपर्स में से, नेट से लेकर 5 से 7 क्वेश्चन प्रैक्टिस करते ही यू विल फाइंड, अरे ये तो मैंने किया हुआ है। In every question, top 2 questions are mostly repeated. अब ये top 2 questions कौन से हैं मैं आपको बता देती हूँ। One is placement of server, second is layout of the building. तो layout में you should be knowing about the topology. Topology में star और बस topology कर लीजिए, सारा क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। सर्वर की प्लेसमेंट का बड़ा ही गोल्डन रूल है, जिस बिल्डिंग में सबसे ज्यादा कंप्यूटर है, वेयर यू फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ कंप्यूटर, उस बिल्डिंग में उठा के सर्वर को लगा दीजिए। वेरी सिंपल। और ये कौन सा रूल है जो हमें कहता है कि सर्वर मैक्सिमम में लगाना है? दिस इज 80-20 रूल। इस रूल को कभी नहीं भूलेंगे कि 80-20 रूल के अकॉर्डिंग सर्वर मैक्सिमम कंप्यूटर वाली बिल्डिंग में लगाना है। नाउ थर्ड क्वेश्चन जो बहुत ही कॉमन होने वाला है इस नेटवर्किंग के बिल्डिंग क्वेश्चन में, दिस इज प्लेसमेंट ऑफ हब और स्विच। हब और स्विच की प्लेसमेंट, ये भी बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। हब और स्विच आपको हर उस बिल्डिंग में लगाना है वेयर देयर आर मोर देन 1 कंप्यूटर। तो मोस्टली सभी बिल्डिंग में मोर देन 1 कंप्यूटर्स है, तो 100% सभी बिल्डिंग्स में हब एंड स्विच आप लगाने वाले हैं। तो 5 में से 3 क्वेश्चन आपके मोस्टली यही रिपीट होने वाले हैं। बाकी 2 क्वेश्चन विल बी अबाउट द टाइप ऑफ इंटरनेट कनेक्शन, टाइप ऑफ वायर्स एंड ऑल। जैसे ही आप 5 से 7 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, आई एश्योर यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन विद फुल मार्क्स। क्लियर? After networking, the last topic is SQL. कितना डिस्कस किया था हमने बच्चों? इसमें हमने डिस्कस किए थे 20 मार्क्स, इंक्लूडिंग कनेक्टिविटी। इंक्लूडिंग कनेक्टिविटी। तो SQL के जितने भी कमांड्स हैं, DDL भी और DML भी, आप सब के सिंटेक्सेस बहुत अच्छे से याद कर लीजिए।
hardly there are 10 to 12 main commands. You need to learn the syntax and after that 20 marks आपके हाथ में है। कमांड्स के साथ एक छोटी सी चीज हमको और तैयार करनी है, ये तो प्रैक्टिकल में भी बहुत काम आ चुकी होगी, बिकॉज द कंप्लीट प्रोजेक्ट वाज बेस्ड ऑन कनेक्टिविटी ओनली, तो इससे तो अगेन बचने का कोई तरीका नहीं है। तो सारे डीडीएल कमांड, क्रिएट टेबल हो गया आपका, ऑल्टर कमांड हो गया, ड्रॉप टेबल हो गया, इसको आप जरूर कर ले। डीएमएल में मेन आप सारी सिलेक्ट की वैरायटी जरूर कर ले बेटा। सिलेक्ट में ऑर्डर बाय, ग्रुप बाय, लाइक क्लॉज, ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इन, नॉट इन, किन्हीं चुनी चीजें हैं, बट सिलेक्ट कमांड आपको बहुत जरूरी है बिकॉज डिस्प्ले रिकॉर्ड करने की बहुत सारी क्वेरीज आती है। सिलेक्ट के बाद आप इंसर्ट कमांड जरूर कर लें, इंसर्ट के बाद आप अपडेट जरूर कर लें, अपडेट के साथ साथ आप डिलीट कमांड जरूर कर लें। तो बहुत ही गिने चुने कमांड्स हैं और एक आप ज्वाइंस पढ़ लें। आफ्टर डूइंग ऑल दीज थिंग्स इट इज वेरी सिंपल टू स्कोर 70 on 70 इन थ्योरी पेपर। बच्चे आई एम टेलिंग यू कि कंप्यूटर साइंस में स्कोर करना कहीं भी डिफिकल्ट नहीं है। द ओनली थिंग इज जो मैंने आपको सारे पॉइंट्स बताए हैं उन पे आप कॉन्सेंट्रेट करिए एंड इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।